بالکل ٹھیک، نجمی نے تائید کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی خونخوار جانور کے نشانات ہوں۔ چند لمحات کے لیے کپتان پریم خاموشی میں کھو گیا اور اس کے بعد بولا، حقیقت یہ ہے کہ یہی شبہ خود مجھے بھی محسوس ہوا تھا، کیونکہ اول تو اتنے بڑے بڑے اور عجیب نشان بمشکل ہی کسی انسان کے ہو سکتے ہیں۔ دوئم یہ کہ شاہد کے فلیٹ کی چھت پر قاتل زینے سے نہیں بلکہ پشت کی دیوار پر چڑھ کر آیا تھا۔ پشت کی طرف ایک باغیچہ تھا اور وہاں دیوار اس قدر بلند اور صاف و ہموار ہے کہ اتنے بڑے ڈیل ڈول کا کوئی انسان اس پر چڑھ نہیں سکتا، بشرط یہ کہ وہ ایک بندر، ایک لنگور یا ایک چھپکلی کی طرح دیواروں پر چڑھنے کا ماہر نہ ہو۔ بے اختیار شہاب ہنس پڑا۔ کس قدر عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، اس نے ہنسی روک کر کہا۔ کیا آپ نے آج تک کوئی ایسا جانور دیکھا یا سنا ہے جو انسان کو اپنے دانتوں یا پنجوں سے نوچنے اور چیر پھاڑ کرنے کی بجائے انسان کا گلا گھونٹ کر مار ڈالنے کا شوقین ہو؟ کیا جانور کو سدھایا نہیں جا سکتا؟ نجمی بولا، اگر تربیت کے بعد سرکس میں ایک ہاتھی سائیکل چلا سکتا ہے تو کیا کسی جانور کو ایسی تربیت نہیں دی جا سکتی کہ انسانوں کا گلا گھونٹ ڈالے؟ بڑا اچھوتا خیال ہے تمہارا، شہاب مسکرایا۔ کسی سنسنی خیز جاسوسی ناول کے لیے تو اس خیال پر ایک دلچسپ پلاٹ تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ایسا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا ممکن تو ضرور ہے، کپتان پریم نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو اس جانور کے غیر معمولی بڑے بڑے ہاتھ پاؤں کے نشانات کو اس بے پرواہی سے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ شہاب نے کہا۔ اگر اس جانور کی شخصیت کو چھپانا تھا تو سب سے پہلے ان نشانات کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو دیکھ کر ہی سب سے پہلے ایک عام انسان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ نشانات کسی انسان کے نہیں بلکہ کسی اور نامعلوم حیوان کے ہیں۔ شہاب کے استدلال نے سب کو خاموش کر دیا۔ شہاب نے گہرے خیالات میں ڈوبتے ہوئے اپنی سگریٹ کے چند کش لگائے اور بولا، اچھا لیجئے، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ شاہد کا گلا گھونٹنے والا ایک جانور ہی تھا۔ اب ان نشانات کی جسامت سے اس کے ہاتھ پاؤں کی جسامت کا اندازہ لگائیے اور پھر ہاتھ پاؤں کی مناسبت سے اس کے باقی جسم کا اندازہ کیجیے۔ اگر ان اندازوں کے تحت ایک تصویر تیار کی جائے تو ایک ایسے جانور کی تصویر تیار ہوگی جو تقریباً ایک ہاتھی کے برابر ہوگا۔ کیا ایسا جانور فلیٹ کی بلند دیوار پر آسانی سے چڑھ سکتا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ وہ جانور شاہد کے فلیٹ تک کہاں سے اور کون سے راستے سے آیا؟ رات کے سناٹے میں بھی ایک گرانڈ ڈیل جانور کو سڑک پر لانا اور لے جانا اس طرح ممکن نہیں کہ کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ فرض کر لیجئے کہ قاتل اس عجیب جانور کو کسی نہ کسی طرح چھپا کر فلیٹ تک لے ہی آیا، خود نیچے کھڑا رہا اور اس ہاتھی جیسی ڈیل ڈول والے جانور کو اس نے حکم دیا کہ جا فلیٹ کی چھت پر چھپکلی کی طرح چڑھ جا اور شاہد کا گلا گھونٹ کر واپس آ جا۔ جانور نے سر تسلیم خم کیا، حکم کی تعمیل کی اور اپنے مالک کے ساتھ پھر سڑک سے گزرتا ہوا اطمینان سے چلا گیا۔ کس قدر مضحکہ خیز ہے یہ تمام تصور، لیکن خود آپ کا تصور بھی تو کچھ کم اوٹ پٹانگ نہیں۔ نجمی نے اعتراض کیا، اگر یہ نشانات کسی انسان کے ہاتھ پاؤں کے ہیں اور ان کی مناسبت سے اس انسان کے باقی جسم کی تصویر تیار کی جائے تو بتلائیے وہ تصویر ایک انسان کی ہوگی یا ایک دیو کی؟ اس کو ایک انسان ماننا تو تقریباً ایسا ہی ہوگا جیسے لمبے چوڑے شخص کو 4 سے ضرب دینا۔ آفندی کی بات تو میں بھول ہی گیا تھا۔ کپتان پریم چونک پڑا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ شہاب نے کہا۔ آپ کے پاس آتے وقت میں اس کے مکان کی طرف سے ہی ہو کر آ رہا تھا۔ مکان مقفل تھا۔ پڑوسیوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کل شام سے غائب ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کل شام جب وہ یہاں ہمارے پاس سے ایک دم بھاگ کر گیا تو اس وقت سے گھر نہیں پہنچا۔ معلوم ہوتا ہے بے حد ڈر گیا کم وقت۔ نجمی بولا، یہی تو مجھے بھی خدشہ ہے، نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ اطمینان رکھیے، وہ اس قدر بزدل ہے کہ خودکشی سے پہلے بخار چڑھ جائے گا۔ ایسا نہ ہو احمق کہیں ادھر ادھر بھاگ جائے۔ شہاب اپنے خیالات میں غرق سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ یکایک وہ کھڑا ہو گیا اور بولا، مسٹر پریم، معاملہ کافی دلچسپ اور سنگین معلوم ہوتا ہے۔ انسپکٹر زیدی کے غائب ہو جانے سے الجھن اور بڑھ گئی ہے۔ کیا شاہد کا فلیٹ مہر بند کر دیا گیا تھا؟ جی ہاں، وہ مقفل کر دیا گیا ہے۔ آئیے میں اس کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فلیٹ میں اب کوئی ایسی چیز نہیں
जिसका जायजा पुलिस ने ना लिया हो। कप्तान प्रेम खामोशी के साथ उठा और शहाब और उसके साथियों को लेकर रवाना हो गया। कम से कम वो मुतमईन था कि इस केस में उसको आसानी से ही शहाब का ताउन हासिल हो गया है। शाहिद का फ्लैट कुछ इतनी बड़ी इमारत ना थी कि शहाब जैसे तजर्बाकार इंसान की निगाहों को उसका जायजा लेने में कुछ ज्यादा देर लगती। उसमें सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक बड़ा कमरा जिसमें पर्दे के जरिए पार्टीशन करके 2 हिस्से कर दिए गए थे। एक हिस्से को ख्वाबगाह समझ लीजिए और दूसरे को नशिस्तगाह। दूसरा कमरा छोटा था और शाहिद ने उसको अपने मुसव्वरी के लिए एक स्टूडियो बना लिया था। बाहर मुख्तसर सा सेहन था जिसके एक तरफ एक छोटी सी कोठरी थी जो गालबन शाहिद के खिदमतगार हमीद के तसर्रुफ में रहती थी। 2 दिन कबल इंस्पेक्टर जैदी भी हमीद के साथ साथ उन कमरों पर नजर डाल चुका था। अपनी रिपोर्ट में उसने साफ साफ बयान किया था कि शाहिद के कत्ल का सबब चोरी नहीं मालूम होता, क्योंकि जैसा कि खिदमतगार हमीद ने भी तस्दीक की है, वहां से कोई सामान गायब नहीं पाया गया। इस कतई रिपोर्ट के बाद भी शहाब उस फ्लैट का जायजा क्यों लेना चाहता था, ये बात कप्तान प्रेम समझने से कासिर था। जीने की पहली सीढ़ी से लेकर फ्लैट की बालाई छत के आखिरी गोशे तक शहाब ने छानबीन का काम इस तरह जारी रखा जैसे वो किसी खोई हुई सुई की तलाश कर रहा हो। उसके साथ खुद कप्तान प्रेम, रंजी और फिरोजा भी इस काम में शरीक थे। पूरी 8 इंसानी आंखें तकरीबन 1 घंटे तक फ्लैट के एक एक इंच का जायजा लेती रहीं, लेकिन वहां कोई मामूली सी चीज भी ऐसी नजर ना आई जो किसी तरह भी मायने खेज तस्वुर की जा सकती, सवाए उस तस्वीर के जो मुसव्वरी के बोर्ड पर अब तक उसी तरह आवेजा थी जैसी 2 दिन कबल इंस्पेक्टर जैदी ने उसको पाया था। सिर्फ 2 इंसानी आंखों की तस्वीर। एक यही चीज ऐसी थी कि शहाब और उसके तीनों साथियों की तवज्जो को कुछ ज्यादा देर तक अपनी तरफ कायम रख सकी। हालांकि कदीम मिस्री इल्मुल इजसाम से मुतल्लिक बहुत सी अजीब अजीब तस्वीरें भी आवेजा थीं। उन लोगों की नज़र जैसे ही उस तस्वीर पर पड़ी, अपनी अपनी जगह जमकर रह गए। किस कदर अजीब आंखें थीं ये। यकीनन ये तस्वीर शाहिद की मुसव्वरी का एक हैरतनाक शाहकार थी। जैदी की तरह उन लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये तस्वीर नहीं बल्कि जिंदा ताकतवर पुरकशिश आंखें हैं और उनमें कोई ऐसी तिलिस्मी खसूसियत मौजूद है कि जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। शहाब और उसके हर एक साथी को ये महसूस हो रहा था जैसे तस्वीरी आंखें किसी दूसरे को नहीं बल्कि सिर्फ उसी को देख रही हैं। उनमें अगर एक तरफ कुछ खौफ और दहशत है तो दूसरी तरफ एक ऐसी कशिश भी है जो देखने वाले के होशो हवास को अपनी तरफ खींच के एक बेखुदी किसी कैफियत तारी करती जा रही है। उनको ताज्जुब था कि इंस्पेक्टर जैदी ने अपनी रिपोर्ट में उन अजीब आंखों का तज़किरा क्यों नहीं किया था। खामोशी के साथ शहाब ने सादा कैनवस का एक टुकड़ा मेज पर से उठाया और तस्वीर पर डाल दिया। किस कदर अजीब है ये तस्वीर, फिरोजा ने महवियत से चौंक कर बेइख्तियार कहा। तस्वीर के पोशीदा होते ही कप्तान प्रेम और नजमी को भी ऐसा एहसास हुआ जैसे वो नींद से चौंक पड़े। बिल्कुल अबुल होल की सी आंखें। नजमी बोल उठा, अरसा हुआ मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक कदीम मिस्री अफसाना पेश किया गया था। उसी के एक मंजर में कदीम मिस्र का अजूबा यानी अबुल होल का मुजस्मा भी दिखाया गया है, जिसका चेहरा इंसान का और बाकी जिस्म शेर का है। उसकी आंखों में कुछ ऐसी ही कैफियत महसूस होती थी। शहाब ने अबुल होल का नाम सुनते ही नजमी की तरफ मुड़कर इस तरह देखा जैसे नजमी ने खुद उसके ही दिल की तर्जुमानी की हो। क्या आपका भी ऐसा ही ख्याल है? कप्तान प्रेम ने शहाब से पूछा। अबुल होल का नाम तो मेरे जहन में नहीं था, लेकिन फिर भी, यानी क्या आपने कभी ख्यालबंद मुसव्वरी का नाम सुना है? शहाब ने पूछा। ख्यालबंद मुसव्वरी? हाँ, ये मुसव्वरी की एक कदीम तरीन नौइयत है, शहाब बोला। इस किस्म की मुसव्वरी की इब्तिदा सबसे पहले तकरीबन 8000 साल कबले मसीह मिस्र में हुई थी। उस किस्म की मुसव्वरी दरअसल फ़न तहरीर की इब्तदाई शक्ल थी। उस वक्त इंसान तहरीर का फ़न नहीं जानता था क्योंकि उस वक्त तक हरूफ की ईजाद ही नहीं हुई थी। आजकल हम लोग अपने ख्यालात को अल्फाज में बंद करके कलम से कागज़ पर रख देते हैं। पढ़ने वाला जैसा उन अल्फाज को देखता है
تو یہی خیالات اس کے دماغ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہی کام الفاظ کی بجائے تصویروں سے بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی مصور اپنے کسی خیال کو تصویر میں اس طرح بند کر دے کہ اس تصویر کو دیکھ کر ہر شخص وہی خیال اپنے دماغ میں محسوس کرنے لگے، لیکن شرط یہ ہے کہ مصور اپنے کام میں اتنا ہی ماہر ہو جتنا کہ ہم لوگ اپنے خیالات کو الفاظ میں منتقل کر کے تحریری الفاظ میں بند کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ بے شک، پریم نے دلچسپی سے کہا۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کسی خاص خیال کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے قدیم ترین زمانے میں حروف و الفاظ کی بجائے سب سے پہلے تصویروں کو ہی استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پر آج کل خطرناک مقامات پر خطرہ کے بورڈ لگائے جاتے ہیں۔ بورڈ پر صرف لفظ خطرہ پڑھ کر ہم اپنے قدموں کو یا اپنی گاڑیوں کو اس سمت جانے سے روک دیتے ہیں۔ اسی طرح قدیم زمانے میں یہ کام ایک تصویر سے لیا جاتا تھا۔ اگر کسی جنگل میں وحشی درندوں کا خطرہ ہو تو کسی درخت کے تنے پر یا کسی چٹان پر کسی درندے کی خوفناک تصویر بنا دی جاتی تھی۔ اس تصویر میں گویا یہ خیال بند ہوتا تھا کہ اس طرف خطرہ ہے۔ تصویر کو دیکھ کر یہی خیال دیکھنے والے کے دماغ پر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی کا نام خیال بند مصوری ہے۔ بابل اور نینوا کی شاندار تہذیب کے دور میں اس قسم کی مصوری کو ترقی ملی اور پھر مصر میں یہ فن انتہائی عروج پر پہنچا۔ حالانکہ حروف اور الفاظ کی ایجاد ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی خیال بند مصوری ایک جداگانہ علم کی شکل میں ترقی کرتی گئی۔ مصر کے قدیم مجسموں میں مثلاً ابو الہول وغیرہ کے مجسمے تیار کرنے میں اسی فن کو استعمال کیا گیا۔ ابو الہول ایک خوف کا مجسمہ ہے۔ قدیم مصریوں نے شہر کے باہر اس کو اس لیے نصب کیا تھا کہ شہر آنے والی بلائیں اور وبائیں ڈر کر بھاگ جائیں۔ بعد میں مادی سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ مصوری کی ماہیت بدلتی چلی گئی لیکن جذباتی مصوری تو آج بھی موجود ہے۔ فیروزہ بولی، کسی خیال یا جذبے کو تصویر میں منتقل کرا، میں بس خیال بند مصوری کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ بالکل دوسری چیز تھی، شہاب نے کہا۔ تصویر میں جذبات کی عکاسی اور بات ہو اور تصویر میں روحانی تاثرات کو سمو دینا بالکل مختلف چیز ہے۔ لیکن اس کا روحانیت سے کیا واسطہ؟ نجمی بولا۔ بات یہ ہے کہ ابتدا میں اگرچہ اس طرح کی مصوری کا مقصد صرف ایک خیال کی ترجمانی تھا، لیکن جب یہی کام بعد میں حروف اور الفاظ سے لیا جانے لگا تو فن تحریر تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور خیال بند مصوری عام لوگوں کے حلقے سے نکل کر کچھ ایسے لوگوں میں رہ گئی جو کسی نہ کسی شکل میں روحانیت سے دلچسپی رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر میں ہپناٹزم یا روحانیت کا ایک ماہر عامل ہوں تو میں آپ لوگوں کو آسانی سے متاثر کر سکتا ہوں کیونکہ آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ لیکن آپ اگر میرے سامنے موجود نہ ہوں بلکہ کسی دور مقام پر ہوں تو آپ کو اتنی آسانی سے متاثر نہ کر سکوں گا۔ اس صورت میں کیا یہ ممکن نہیں کہ میں ایک ایسی تصویر تیار کروں جس کے اندر اپنی روحانی قوتوں کو بھر دوں، پھر آپ کے پاس یہ تصویر بھیج دوں اور آپ جب اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ پر وہی اثر پیدا ہو جائے جو میں آپ پر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح آپ میرے سامنے تو موجود نہ ہوں گے لیکن اس تصویر کے سامنے موجود ہوں گے، اور اگر میں ایک ماہر مصور ہوں تو یہ تصویر وہی کام کرے گی جو میں خود آپ کے سامنے موجود ہو کر سکتا ہوں۔ معاف کیجئے، یہ اوٹ پٹانگ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ نجمی مسکرایا۔ یہ تو جادوگری ہو گئی۔ مادی تہذیب نے ہمیں روحانیت کی طرف سے اندھا کر دیا ہے دوست۔ شہاب بھی مسکرایا۔ ابھی تم ان تصویری آنکھوں کے تاثرات کا تجربہ کر چکے ہو اور پھر بھی خیال بند مصوری کو جادو کہہ کر مذاق اڑاتے ہو۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ شاہد ایک ماہر عامل روحانیت تھا، فیروزہ نے کہا، ورنہ وہ ایسی تصویر کیسے بنا سکتا؟ دو ہی شکلیں ہیں، شہاب نے کہا۔ یا تو وہ خود پوشیدہ روحانیات کی قوتوں کا مالک تھا اور اس نے اپنی قوتوں کو ان تصویری آنکھوں میں منتقل کیا، یا پھر اس نے یہ تصویر کسی ایسے شخص کو اپنے سامنے بٹھا کر بنائی جو ایک زبردست روحانی عامل تھا۔ کیوں مسٹر پریم، کیا انسپکٹر زیدی نے اپنی رپورٹ میں کسی ایسے شخص کا تذکرہ نہیں کیا جس کی تصویر حال ہی میں شاہد بنا رہا ہو؟ جی نہیں، اس نے کسی تصویر کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تصویر کسی شخص کو ماڈل بنا کر تیار کر رہا ہو
और वो शख्स गैर मामूली रूहानी कुव्वतों का मालिक हो। शहाब ने सोचते हुए कहा, इस पुरअसरार शख्स ने अपनी रूहानी कुव्वतों का तमाम असर अपनी आंखों में पैदा कर दिया और शाहिद ने एक माहिर मुसव्विर की तरह वो तमाम असर इस तस्वीर में मुंतकिल कर दिया। मेरे ख्याल में उस शख्स ने शाहिद से ये तस्वीर तैयार करवाई इसी मकसद के लिए थी कि देखने वालों को बेखुद बना दे, वरना महज आंखों की ही तस्वीर क्यों बनाई जाती। और अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो वो एक औरत थी। शहाब के साथी चौंक पड़े। उनकी निगाहें मुजस्सम सवाल बनकर शहाब की तरफ उठ गईं। अगर आपके दिमागों को इतनी मोहलत मिली होती कि इन तस्वीरी आंखों को सुकून से देख सकें, तो आपको भी महसूस हो जाता कि ये आंखें किसी औरत की ही हो सकती हैं। शहाब ने कहा, आप लोग इन आंखों में बंद की हुई रूहानी कुव्वत के तासुरात में खो गए, इसीलिए आप उनमें छुपी हुई नसाइयत को महसूस नहीं कर सके। शायद हमें हमीद से ये मालूम हो सकेगा कि हाल ही में कोई औरत अपनी तस्वीर शाहिद से बनवा रही थी या नहीं। लेकिन वो औरत अपनी तस्वीर क्यों बनवा रही थी? कप्तान प्रेम ने कहा, अपनी साहिराना आंखों की तस्वीर बनाकर वो किन लोगों को और क्यों मुतासिर करना चाहती थी? मुमकिन है वो खुद शाहिद को ही मसहूर करना चाहती हो। फिरोजा ने कहा, शाहिद तो उसके सामने मौजूद ही था, वो बजाते खुद उस पर असर डाल सकती थी। प्रेम ने कहा, फिर तस्वीर बनाने से फायदा? इस उलझन को छोड़िए। शहाब बोला, इस तरह हम कियासात के अंधेरे में दूर भटक जाएंगे। इस पुरअसरार औरत को भूलकर इस पुरअसरार कातिल पर तवज्जो दीजिए, जिसके हाथ पांव गैर इंसानी हद तक बड़े बड़े थे। ताज्जुब यह है कि उसने कत्ल के बाद चोरी क्यों की? चोरी? प्रेम हैरत से चौंक पड़ा। जी हाँ, लेकिन यहाँ से तो कोई चीज़ भी गायब नहीं। इंस्पेक्टर जैदी और शाहिद का खिदमतकार हमीद उसकी तस्दीक कर चुके हैं। मेरे ख्याल में वो दोनों भी इन तस्वीरी आंखों के तासुरात में ऐसे खो गए जैसे कि आप लोग और आपकी तरह वो लोग भी मसरूका शय की कमी महसूस ना कर सके। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मैं इस तरह के असरात के लिए आम लोगों से कुछ ज्यादा बेहिस वाक़या हुआ हूँ। लेकिन कौन सी चीज चुराई गई है? कप्तान प्रेम ने चारों तरफ नजर डाली। चीज इतनी मामूली सी है कि उसको लेने के लिए एक पागल ही कत्ल का जुर्म कर सकता है, और शायद इसीलिए भी आप लोगों का ध्यान और आपसे पहले जैदी और हमीद का ख्याल उस चीज की कमी की तरफ नहीं गया। वो देखिए सामने उस दीवार की तरफ। शहाब दीवार पर बुलंदी की तरफ इशारा कर रहा था। फर्श से कोई 6-7 फीट की ऊंचाई पर दीवार पर एक गोल निशान बना हुआ था, तकरीबन 6 इंच गोल निशान। कमरे की दीवारों पर नीला रंग फेरा गया था, जो गालबन कई साल पुराना होने की वजह से फीका पड़ गया था। मगर ये गोल निशान ज्यादा गहरा नीला था और उसके ऊपर के हिस्से में एक छोटी सी कील गड़ी हुई थी। ये समझना कुछ मुश्किल ना था कि उस कील के सहारे दीवार पर कोई गोल चीज काफी मुद्दत से लटकी हुई थी, जो इस वक्त गायब थी। दीवार का जितना हिस्सा उस गोल शय के पीछे छुपा हुआ था, उसका रंग हल्का नहीं पड़ सका था। क्या अंदाजा है आप लोगों का? शहाब बोला, वो गोल शय कौन सी हो सकती है जो यहाँ लटकी हुई थी? कोई तस्वीर शायद। कप्तान ने कमरे में लगी हुई दूसरी चीजों के मद्देनजर कहा। जी नहीं, मुझे यकीन है कि वो एक छोटी किस्म की क्लॉक थी, और इस गोल धब्बे पर रंग की ताजगी जाहिर करती है कि इस घड़ी को हाल ही में दीवार से हटाया गया है। बेशक, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इस घड़ी को कातिल ने ही हटा दिया हो। नजमी बोला, इसकी तस्दीक के लिए इस कुर्सी को देखिए। शहाब ने इशारा किया। गोल निशान के ठीक नीचे फर्श पर एक कुर्सी रखी हुई थी। पूरी कुर्सी लकड़ी की बनी हुई थी और बैठने वाले हिस्से पर एक धुंधला मगर यकीनी तौर पर पांव का निशान मौजूद था। उतना ही बड़ा पांव का निशान जितना कि लाश के करीब फ्लैट की छत पर पाया गया था। ये जाहिर था कि कातिल के हैरतनाक हद तक चौड़े पांव में बाग की नरम मट्टी इस कदर काफी लग गई थी कि छत की तरह इस कुर्सी पर भी उसका हल्का सा निशान बाकी रह गया था। इन मुशाहिदात से जो नतीजा निकलता है वो जाहिर है। शहाब बोला, कातिल ने यह कुर्सी दीवार के करीब घसीट ली और फिर कुर्सी पर चढ़कर दीवार से घड़ी को उतार लिया। कुर्सी की साफ सतह पर उसके पांव का ये निशान बाकी रह गया, और वो इतना बेपरवाह और बेवकूफ था कि फर्श पर बने हुए निशानात की तरह
कुर्सी पर बने हुए निशान को भी उसने मिटाना जरूरी ना समझा। अजीब बात है, कप्तान प्रेम बोला। सारे कमरे को छोड़कर, जिसमें कुछ कीमती चीजें भी मौजूद थी, मुजरिम ने सिर्फ इसी घड़ी को लेना क्यों पसंद किया? ये बात तो हमें पूरी तरह शाहिद के खिदमतगार हमीद से ही मालूम हो सकेगी, शहाब ने जवाब दिया, क्योंकि वही बता सकेगा कि ये क्लॉक किस किस्म की थी। बाज वजूहात से फिलहाल मेरा क्यास है कि शायद वो घड़ी बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन हमीद ने दीवार पर घड़ी की कमी को क्यों महसूस नहीं किया? फिरोजा ने सवाल किया। शायद इसलिए कि घड़ी खराब थी और मुद्दत से बंद थी, शहाब ने कहा। एक चलती हुई क्लॉक की टिक टिक कमरे का लाजमी हिस्सा बन जाती है। अगर आप उस कमरे में मुसलसल और मुस्तकिल आते जाते रहे हैं और हर बार क्लॉक की टिक टिक सुनते रहते हैं, तो आपके जहन में ये आवाज़ उस कमरे के साथ वाबस्ता हो जाएगी। फिर अगर क्लॉक वहाँ से हटाई जाए और आप कमरे में आए तो उसकी कमी को फौरन महसूस करेंगे। ये एक नफ्सियाती नुक्ता है और इसकी सदाकत का तजर्बा खुद मुझे कई बार अपने कमरे में हो चुका है। अगर चाबी ना देने की वजह से मेरी क्लॉक बंद हो गई तो कमरे में आते ही मुझे किसी कमी का, सन्नाटे का एहसास हुआ और फिर फौरन ही खुद ब खुद क्लॉक का ख्याल पैदा हो गया। वाकया ये है कि आप नफ्सियात के जादूगर हैं। प्रेम मुस्कुराया। ये सब मेरी शागिर्दी का सदका है, नजमी ने फिक्रा उड़ाया। आप जैसे बेमगज शायर को भला नफ्सियात से क्या वास्ता, जिसको अपने लिए ढंग से बेहतर तखल्लुस भी ना मिल सका। फिरोजा ने चोट की। हाँ साहब, भला आप भी शहाब साहब की हमायत ना करेंगी तो और कौन करेगा? नजमी ने मुंह बनाया। मेरी बीवी नंबर 3 जिंदा होती तो वो मुंह तोड़ जवाब मिलता कि ये मरसिया जोजगान बंद कीजिए, शहाब ने कहा। एक खराब शुदा और बंद क्लॉक की ये चोरी यकीनन एक दिलचस्प इजाफा है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज उस कातिल की शख्सियत हो गई है। मेरा ख्याल है कि घड़ी की चोरी की बिना पर अब मैं कातिल के हुलिये के मुतालिक चंद तफसीलात और बता सकता हूँ। मसलन, प्रेम ने हैरत से शहाब की तरफ देखा। मसलन ये कि वो यहाँ फ्लैट तक गालबन एक कार में आया था, लेकिन खुद वो ड्राइव नहीं कर रहा था। उसके सर पर ही नहीं बल्कि तमाम जिस्म पर मोटे चिकने बाल मौजूद हैं। होंठ भी मोटे हैं, नाक नक्शा भद्दा और बेतुका है। आंखों पर घनी पलकें तकरीबन लटकी हुई हैं। जवानी की इब्तदा से ही वो एक अलग थलग राहिबाना सी जिंदगी बसर करता रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि डेल डोल में वो हमसे भी छोटा है, यानी तकरीबन 4 फुट। खूब, नजमी ने मुस्कुरा कर कहा। जाहिर है कि कातिल सामने तो है ही नहीं, इसलिए आपकी तरदीद कैसे की जा सकती है? चाहे जो बकते चली जाइए। दूसरी बातों से कत नजर मैं ये मानने को तैयार नहीं कि कातिल महज एक 3-4 फुट का पिस्ता कद बोना था। प्रेम मुस्कुराया। हाथ पांव के ये चौड़े चकले निशानात इस बात का सबूत है कि वो हम सब से कम अज कम दोगुना डेल डोल रखता है। हाथ पांव के निशानात तो बेशक यही बताते हैं मिस्टर प्रेम, शहाब ने कहा। अगर उसने ये घड़ी चोरी ना की होती तो मैं भी ऐसा ही समझ रहा था। घड़ी की चोरी से कातिल कैसे बोना साबित हो सकता है? नहायत आसानी से, शहाब बोला। दीवार पर क्लॉक का ये निशान बताता है कि अगर कातिल का कदो कामत हमारे जैसा होता तो वो कुर्सी के मदद के बगैर ही हाथ उठाकर घड़ी को उतार सकता था। यकीन ना हो तो आप खुद दरो दीवार के पास खड़े होकर देख लें, लेकिन घड़ी तक हाथ पहुंचाने के लिए उसको कुर्सी पर चढ़ने की जरूरत पड़ी। इसके मायने ये हैं कि कदो कामत में वो हमसे भी तकरीबन 2 फुट कम था। इस सीधे सादे इस्तदलाल ने सबको लाजवाब कर दिया। जरा सी देर में कातिल की जसामत का पहला नजरिया पाश पाश हो गया था। सबकी आंखों में हैरत और हसरत की चमक थी, लेकिन इस इंकशाफ के साथ मामला और भी ज्यादा उलझ गया था। समझ में नहीं आता कि उस इंसान को क्या कहा जाए जो हाथ पांव के लिहाज से द्यो और कदो कामत के लिहाज से सिर्फ एक बोना हो। प्रेम बोला। लेकिन इस मुजरिम के मुतालिक बाकी दूसरी बातें आपने किस बुनियाद पर क्यास कर ली? माफ कीजिए, अगर आपको थोड़ी सी डॉक्टरी और तिब्बी मालूमात भी हासिल होती तो आप भी ऐसा ही क्यास कर सकते हैं, शहाब ने कहा। वाकया यह है कि कातिल के मुतालिक मैंने जो कुछ बताया है वो ठोस इल्मी मालूमात की बुनियाद पर बताया है। मुझे इससे इनकार नहीं कि मुजरिम के हाथ पांव बहुत गैर मामूली हद तक बड़े बड़े थे।
इतने बड़े कि एक औसत दर्जे के कदोकामत वाले इंसान या औसत से भी ज्यादा कदोकामत वाले शख्स के जिस्म पर ऐसे हाथ पांव नहायत बेतुके, बेजोड़ और गैर मुतनासिब मालूम होंगे। फिर कातिल तो यकीनन औसत दर्जे से भी कम कदोकामत रखता था, इसलिए उसके जिस्म पर तो इतने बड़े हाथ पांव इंतहा से ज्यादा गैर फितरी ही कहे जाएंगे। और हमें लाजमी तौर पर यह नतीजा निकालना पड़ेगा कि उसके बेहद पिस्ता कद और बेहद बड़े हाथ पांव का ये बेतुका और गैर फितरी मजमुआ दरअसल एक बीमारी का नतीजा है। एक ऐसी बीमारी जो जिस्मानी गदूद के बेढंगे फेलो अमल से पैदा होती है और जिसका नाम तिब्बी दुनिया में अंसार अजविया या एक्रोमेगाली है। ये मर्ज कौन सी बला है? नजमी बोला। ये मर्ज शाजो नाजर ही पाया जाता है, शहाब ने कहा। जदीद तरीन तिब्बी तहकीकात के लिहाज से इस अजीब मर्ज का सबब ये होता है कि बलगमी रतुमात खारिज करने वाले गदूद का फेल हद से ज्यादा तेज हो जाता है और जिस्म में वो रतुबात हद से ज्यादा पैदा होने लगती हैं जिनकी मदद से इंसानी जिस्म बढ़ता है। इंसानी जिस्म में खास उम्र तक कुदरती तौर पर बढ़ता रहता है और उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। अगर ये मर्ज ऐसे ज़माने में पैदा हो जबकि इंसानी जिस्म कुदरती तौर पर बढ़ रहा हो तो नतीजा ये होता है कि वो इंसान 1-2 बन जाता है। चुनाचे ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि इंसान का कदोकामत 9 फुट से भी ज़्यादा हो सकता है। इसके बरक्स अगर ये मर्ज उस ज़माने में पैदा हो जिनका तज़किरा मैंने किया है, यानी भद्दा नाक नक्शा, मोटे चिकने बाल तमाम जिस्म पर फैले हुए, मोटे होंठ, घनी लटकी हुई पलकें, लंबे बड़े जबड़े, बड़े बड़े चौड़े हाथ पांव और एक हद से ज्यादा भद्दा बल्कि खौफनाक चेहरा। खास तौर पर हाथ पांव इतने बड़े हो जाते हैं कि छोटे से कद के साथ मिलकर इंसान को इस काबिल नहीं छोड़ते कि मोटर कार में ड्राइवर की नशिस्त पर बैठकर स्टीयरिंग पर आसानी से कंट्रोल कर सके और सहूलत से गाड़ी चला सके। लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि वो अलग थलग एक राहबाना सी जिंदगी भी बसर करता रहा हो? प्रेम ने कहा। राहबाना जिंदगी का तज़किरा मैंने एक और वजह से किया था, शहाब ने कहा। यह जाहिर है कि इस किस्म के अजीबो गरीब जिस्म शक्ल का इंसान जहां भी जाएगा ख्वामख्वाह लोगों की निगाहों का तमाशा और अजूबा बन जाएगा। ऐसा शख्स खुद को लोगों की तवज्जो से दूर नहीं रख सकता। लेकिन हम में से किसी ने भी आज तक किसी अखबार में, किसी महफिल में, किसी जगह भी ऐसे इंसान का तज़किरा नहीं सुना। इसके मायने ये है कि वो किसी सुनसान दूर अफ्तादा मुकाम पर पोशीदा रहा है, या दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि उसको पोशीदा रखा गया है। क्योंकि मुझे यकीन है कि ये अजीब इंसान बजाते खुद शाहिद या किसी दूसरे शख्स का गला घोंटने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि किसी और शख्स के इशारों पर एक आलाकार बना हुआ है। ये क्यों? इसलिए कि इस तरह का अजीब इंसान अकल के एतबार से एक बच्चे से भी कम होता है। उसको कातलाना जराइम से भला क्या ताल्लुक? मेरा ख्याल है कि जो घड़ी वो यहाँ से चुरा कर ले गया वो ज़रूर एक खिलौने की तरह कुछ खूबसूरत और दिलकश रही होगी। उसके दिलचस्पी से मुतासिर होकर एक बच्चे की तरह वो उसे ले जाने पर अचानक मजबूर हो गया। असल मसला तो फिर भी उलझा हुआ ही रहा। फिरोजा बोली, सवाल यह है कि इस अजीब इंसान को किसी दूसरे शख्स ने आला-ए-कार बनाया ही क्यों और शाहिद का खात्मा ही क्यों कराया? क्या ये सब कुछ उसी नामालूम औरत का काम तो नहीं जिसकी आंखों की ये तस्वीर शाहिद ने बनाई है? प्रेम ने कहा। आइए पहले हम हमीद से मुलाकात करें, शहाब ने कहा। देखना ये है कि ऐसी कोई औरत थी भी या नहीं। ऐसा मालूम होता था कि हमीद गुज़िश्ता 2 दिन से उसी पुरस्रार औरत के मुतल्लिक सोचता रहा था, क्योंकि शहाब के पहले सवाल पर ही उसने अपनी दास्तान रवानी के साथ शुरू कर दी। जी हाँ, एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ फ्लैट में अपनी तस्वीर बनवाने के लिए बराबर आती रही थी। वो बोला, क्या आपने उसकी तिलिस्मी आंखों की तस्वीर वहाँ कमरे में नहीं देखी? ये उसी लड़की की आंखें थीं। मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जब वो गौर से देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे दिल को नोच रही है और दिमाग पर नींद सी छा रही है। आप मुझे पागल समझें या कुछ और, मगर मुझे यकीन है वो लड़की लड़की नहीं थी। लड़की थी, नजमी ने मजाक किया। जी नहीं, वो तो ज़रूर कोई रूह थी। ये तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ?
शहाब ने दिलचस्पी से पूछा। आपसे पहले मैंने इंस्पेक्टर साहब को अपनी मुर्दा बीवी की रूह का किस्सा बताया था। हमीद ने कहा। उसकी रूह को बुलाने के लिए मैंने हाजरात कराई थी। जब एक सफ़ेद परछाई की तरह वो रूह मेरे सामने जाहिर हुई तो मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था जैसा उस बुरके वाली लड़की को देखकर महसूस हुआ। क्या वो बुरका पहन कर आती थी? प्रेम ने पूछा। जी हाँ, और बात भी साफ इशारे से करती थी ताकि तुम उसकी शख्सियत और आवाज़ का अंदाज़ा न कर सको। प्रेम बोला। लेकिन वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी आंखों को ज़रूर पहचान सकता हूँ। हमीद बोला और उसके बाद उसने वही तमाम अफसाना दोहरा डाला जो एक बार पहले इंस्पेक्टर जैदी के सामने बयान किया था। क्या फ्लैट से कोई चीज़ गायब महसूस नहीं हुई? शहाब ने गुफ्तगू का उन्वान बदलते हुए कहा। जी नहीं, मुसव्वरी के कमरे में दीवार पर कोई घड़ी लगी हुई थी। जी हाँ। तो क्या वो घड़ी? हाँ, वो गायब है। ताज्जुब है तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं हुई। मैं तो उस घड़ी को भूल ही गया था। बात यह है कि वो घड़ी थी ही नहीं। क्या मतलब? शहाब चौंक पड़ा। वो घड़ी दरअसल मट्टी का बना हुआ एक खूबसूरत खिलौना थी। खिलौना का लफ्ज़ सुनकर शहाब के साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यही लफ्ज़ खुद शहाब भी इस्तेमाल कर चुका था। किस तरह का खिलौना? शहाब ने पूछा। क्या शाहिद को किसी ने पेश किया था? जी नहीं, कोई 1 साल हुआ वो एक नुमाइश से खरीद कर लाए थे और दीवार पर लटका दिया था। मट्टी की ये घड़ी खुशनुमा रंग से बनी हुई थी, लाल लाल गहरा रंग जिसके बीच में सुनहरा पानी फेर दिया गया था। उस घड़ी में जो सुइयां बनाई गई थी उनकी शक्ल 2 छोटी छोटी खूबसूरत परियों की तरह थी। सब्ज रंग की परियां जो अपने सुनहरे पर फैलाए हुए उड़ रही हों। जब वो उसको खरीद कर लाए तो मुझे याद है मैंने कहा था, ये क्या बच्चों का खिलौना खरीद लाए हो मालिक। घर में दुल्हन और बच्चे होते तो एक बात भी थी। वो ये सुनकर हंसकर खामोश हो गए। अब आप ही बताइए, मुझ जैसे बूढ़े आदमी को इस खिलौने से क्या दिलचस्पी हो सकती थी जो उसको याद रखता। 1 साल में सब कुछ दिमाग से उतर गया, मगर किसी ने उसको चुराया ही क्यों? क्या वो कोई बच्चा था? बच्चा नहीं तो मुमकिन है कि शाहिद मियाँ की तरह तबीयत के लिहाज से बच्चा ही हो। शहाब ने कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या उस पुरस्कार लड़की के साथ कभी कोई और भी फ्लैट में आया था? जी नहीं, वो तो हमेशा तन्हा ही आती थी। क्या तुमने फ्लैट के आसपास बागीचे में या किसी और जगह कोई ऐसा शख्स देखा है जिसका चेहरा भद्दा, भयानक, कद बिल्कुल छोटा लेकिन हाथ पांव बहुत बड़े हों? जी नहीं। मजीद सवालात को बेकार समझकर शहाब अपने साथियों को लेकर रुखसत हो गया। घड़ी की चोरी के मद्देनजर बड़े बड़े चौड़े हाथ पांव वाले पुरस्कार बोने के मुतालिक शहाब ने कुछ अंदाजा लगाया था। उसकी पूरी तस्दीक हमीद के बयान से हो गई थी। इसके साथ ही हमीद ने उसकी भी तस्दीक कर दी थी कि आंखों की ये तलिस्मी तस्वीर जिस लड़की की थी वो यकीनन कोई मामूली हस्ती ना थी। वो यकीनन चंद खास रूहानी कुव्वतों की मालिक थी। उसकी आंखों में ये कुव्वतें तस्वीर के अंदर ही झलकती महसूस होती थीं और इस तरह ख्याल बंद मुसव्वरी का नजरिया ही दुरुस्त मालूम होता था। बज़ाहिर इस अमर का कोई कानूनी सबूत मौजूद न था कि उस पुरस्कार लड़की का ताल्लुक उस खौफनाक बोने से था जिसके मुहीब हाथ ने शाहिद का गला घोंट डाला था, लेकिन फिर भी दिल यही कहता था कि इन दोनों पुरस्कार हस्तियों में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कप्तान प्रेम ने इन ख्यालात का इजहार किया तो शहाब बोला, इंकशाफ के साथ साथ मामला और भी ज्यादा उलझ गया है मिस्टर प्रेम। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमने अपने मुशाहिदात और इस्तदलाल से 2 नामालूम हस्तियों की एक ख्याली तस्वीर बना ली है। एक रूहानी कुव्वतों की मालिक खूबसूरत लड़की और दूसरे एक अजीबोगरीब वहशी जानवर की तरह का बोना। इन दोनों की खुसूसियात का एक खाका हम अपने जहन में तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। यकीनन ये एक अहम कामयाबी है, लेकिन बुनियादी सवालात अभी तक कायम हैं। शाहिद को आखिर क्यों हलाक किया गया? जब तक जुर्म का हकीकी मकसद मौजूद ना हो हम किसी की तरफ भी शक व शुबह की उंगली तक नहीं उठा सकते। चंद मिनट बाद ये लोग इंस्पेक्टर जैदी के मकान पर पहुंच गए। वो अब तक वापस ना आया था और किसी को उसने मतला करने की जरूरत महसूस ना की थी। इन हालात में अब बेगम जैदी और दूसरे मुतल्लिकीन काफी परेशान थे।
खास तौर पर शहाब को देखकर बेगम जैदी को कुछ तस्कीन हुई। इस मामले में इस शोहरा आफाक सुराग रसां की दिलचस्पी यकीनन बाइसे इत्मीनान थी। मिस्टर शहाब, खुदा के लिए कुछ कीजिए, बेगम जैदी ने कहा। इस तरह लापता हो जाना जैदी साहब की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। परेशानी की जरूरत नहीं मोहतरमा, शहाब ने तसल्ली दी। जैदी साहब यहाँ से किस वक्त गए थे? निस्फ शब के करीब। इससे पहले वो मुताले के कमरे में कुछ पढ़ रहे थे। ऐसा अक्सर बेशतर करते थे। मैं ख्वाबगाह में जाकर सो गई। आधी रात के करीब उन्होंने खिदमतगार को जगाकर कहा कि दरवाज़ा बंद करे। खिदमतगार ने बताया कि वो इस वक्त पूरी वर्दी में थे। क्या मैं मुताले का कमरा देख सकता हूँ? शौक से। एक इंस्पेक्टर पुलिस खास तौर पर मुताले का कमरा अलग रखता है और फिर अक्सर देर तक मुतालिया करता हो, ये बात शहाब को कुछ अजीब सी महसूस हुई। अपने फ़राइज़ से मुताले के लिए इस कदर वक्त निकाल लेना एक पुलिस अफसर के हैरतनाक शौक़ मुतालिया को जाहिर करता था। कमरे में दाखिल होते ही पहली नज़र में उसकी तस्दीक भी हो गई। कमरे के एक पहलू में पूरी 2 अलमारियां किताबों से लबरेज रखी हुई थीं। करीब ही एक नीची मेज़ और 2 आराम कुर्सियां मौजूद थीं। एक आराम कुर्सी के बाएं पहलू पर छोटे से गोल स्टूल पर एक बरकी लैंप रखा हुआ था। शहाब ने किताबों की पुश्त पर उनके नामों पर एक नज़र डाली। एक सरसरी नज़र में ही उसको कोई ऐसी बात महसूस हुई कि उसकी पेशानी पर परेशानी की शिकनें उभर आईं। कप्तान प्रेम, नजमी और फिरोज़ा उसके तासुरात को खामोशी से देख रहे थे। मामला बेहद संगीन हो सकता है, शहाब ने मुड़कर प्रेम से कहा। कौन सा मामला? प्रेम चौंक पड़ा। यही इंस्पेक्टर जैदी की ये तवील गैर मौजूदगी। मुझे डर है कहीं वो भी क्या मतलब? नजमी ने बेसब्री से कहा। मुझे अब जैदी की जिंदगी की तरफ से खदशा पैदा हो गया है। इन किताबों को देखकर फिरोज़ा हैरत से बोली। हाँ, देखो ना, इन किताबों में ज़्यादातर 2 किस्म की हैं। तकरीबन 25% किताबें फ़लसफ़ा जराइम से मुतल्लिक हैं। फ़लसफ़ा जराइम से एक पुलिस अफसर की दिलचस्पी कोई ताज्जुब की बात नहीं। हैरत की बात तो ये है कि बाकी तकरीबन 75% किताबों का ताल्लुक रूहानियत से है। मैंने तो कभी जैदी को रूहानियत के मुतल्लिक तज़किरा करते नहीं सुना, प्रेम ने कहा। आप ही नहीं बल्कि उसकी बीवी ने भी नहीं सुना होगा। वो अपने इस शौक़ को यकीनन पोशीदा रखे हुए था और दरअसल वो आधी आधी रात तक इन रूहानियात की किताबों के मुताले में फंसा रहता होगा। लेकिन इससे जैदी की जिंदगी को खतरा कैसे हो सकता है? फिरोज़ा ने कहा। इनमें तकरीबन निस्फ किताबें मैं खुद पढ़ चुका हूँ, शहाब ने कहा। ये सब रूहानियत के उस पोशीदा आलिम के मुतल्लिक हैं जिसका ताल्लुक कदीम मिस्र से है। इनमें नावल तक वही मुंतखब किए गए हैं जो कदीम मिस्री पुरस्रार इंसानों से ताल्लुक रखते हैं और उसी शौक का सबूत हैं। हम लोग शाहिद के कमरे में लगी हुई मुतअद्दिद तस्वीरों में भी देख चुके हैं। 2 मिनट के लिए कमरे में मौत की सी खामोशी तारी हो गई। आपका मतलब है कि चूंकि शाहिद और जैदी दोनों ही कदीम मिस्रियात से दिलचस्पी रखते थे, इसलिए वो दोनों इसी तरह के किसी हादसे का शिकार हुए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं? शहाब ने कहा। यह कहते हुए उसने अपने साथियों से तवज्जो हटाकर कमरे में चारों तरफ नाकदाना नजर डाली। मेज पर रखे हुए कुछ कागजात को उलट पलट कर देखता रहा और आखिरकार एक छोटे से कागज को इंतखाब करते हुए बोला, ये देखिए। आप इसे महज इत्तफाक नहीं कह सकते। तीनों साथियों की नजरें कागज पर झुक गईं। उस पर पेंसिल से एक भद्दी सी तस्वीर बनी हुई थी, जैसे कोई शख्स किसी गहरे ख्याल में खोया हुआ हो और बेइरादा और बेमकसद तौर पर पेंसिल से कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें बेखुदी की हालत में बनाता चला गया हो। लेकिन उस कागज पर ये आड़ी तिरछी लकीरें बाहम मिलकर एक भद्दी सी तस्वीर में तब्दील हो गईं। 2 आंखों की तस्वीर। जाहिर है कि जैदी कोई मुसव्विर न था और ना वो गौर और एहतियात से ये तस्वीर बना रहा था, शहाब ने कहा। यही वजह है कि ये तस्वीर इस कदर भद्दी और बचकाना सी है। फिर भी हम इस तस्वीर में उन आंखों की किसी कदर मुशाबिहत महसूस कर सकते हैं जिनकी तस्वीर हमने शाहिद के कमरे में देखी है। मालूम होता है जैदी के दिमाग पर उन्हीं आंखों का तस्वुर तारी था और बेखुदी में उसकी पेंसिल उनकी नकल बनाती जा रही थी। शहाब ये अल्फाज कहता जा रहा था और मेज़ की दराज को खोलने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन दराज मुकफ़ल थी।
मुझे थोड़ी देर के लिए चोर बनना पड़ेगा। शहाब कप्तान प्रेम की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये तो आपकी पुरानी बीमारी है, नजमी ने तंजिया फिक्रा कहा। इतनी ही देर में शहाब अपनी तिलिस्मी कुंजी से मेज की दराज खोल चुका था। दराज में सिर्फ एक चीज थी, एक छोटी सी नोटबुक। फौरन ही चारों इंसानों की पुरशौक नजरें नोटबुक का जायजा लेने लगी। चंद ही वरक उलटने से यह जाहिर हो गया कि इस नोटबुक में जैदी ने अपने रूहानियात के तजर्बों की याददाश्त दर्ज की थी। इधर उधर से सरसरी तौर पर पढ़ने से ही ये मालूम हो गया कि जैदी ने जिन वाक़यात और तजर्बात को मुख्तसर तौर पर तहरीर किया था, उनमें से हर एक तजर्बे को लेकर एक तिलिस्म होशरुबा तसनीफ की जा सकती थी। सबसे आखिर में वो सबसे ज़्यादा तहरीर हस्बे ज़ेल थी और मंदरजा तारीख से जाहिर था कि ये याददाश्त 2 रोज़ कबल ही लिखी गई थी। उस लड़की ने अपनी आंखों में एक लम्हे के लिए मुझे जो कुछ दिखाया है वो उसकी आंखों की तस्वीर में भला कहाँ आ सकता था। मुझे यकीन है कि वो रूहानियत की ज़बरदस्त माहिर है। किस कदर अहमक था मैं कि एक साथ के लिए भी मैंने सोचा कि शाहिद की मौत से उस लड़की का कोई ताल्लुक हो सकता है। उसकी मासूम और पाकीज़ा आंखें, जिनका तस्वुर इस वक्त भी मेरे जहन पर छाया हुआ है, इस बात का सबूत है कि वो मुजरिम हो ही नहीं सकती। शाहिद का कातिल एक वहशी द्योकामत इंसान था, एक मुकम्मल शैतान। शायद वो रूहानियत के परिस्तारों का दुश्मन था, शायद इसीलिए उसने शाहिद का गला घोंट डाला। वो बरज़ख के तमाम मेंबरों का दुश्मन है। उसका बस चले तो शायद वो उस लड़की का भी खात्मा कर दे ताकि बरज़ख का वजूद ही ख़त्म हो जाए। ऐसे शैतान का सुराग लगाना बेहद ज़रूरी है। मेरा दिल कहता है कि ये लड़की ऐसी रूहानी कुव्वतें रखती है कि अपना वादा पूरा कर देगी और रूहानियत के ज़रिए कातिल का सुराग लगाने में कामयाब होगी। अगर ऐसा हो गया तो किस कदर शानदार फतह होगी रूहानियात के मोतकदीन की। जराइम की तफ्तीश के तरीक़ों में एक नया इनकलाब आ जाएगा और इंसानी दुनिया खौफनाक मुजरिमों के वजूद से ही निजात पा सकेगी। यकीनन उस लड़की से आज रात मेरी ये मुलाकात एक इनकलाबी मुलाकात साबित हो सकती है। उस नोटबुक के बाद अब जैदी के कमरे में और कुछ देखने को बाकी ना था। बेगम जैदी को बहुत कुछ तसल्ली देकर ये लोग कोतवाली की तरफ रवाना हो गए, लेकिन हकीकत ये थी कि उनमें हर एक शख्स जैदी की आकबत के लिए और ज़्यादा परेशान हो गया था। जैदी की इस तहरीर ने तो काया ही पलट दी। कप्तान प्रेम बोला, हमारा ख्याल था कि मुहीब हाथ पाँव वाला बोना उस पुरस्रार लड़की का आलाकार होना चाहिए, लेकिन जैदी की उस तहरीर से ये अंदाज़ा गलत साबित हो रहा है। बेशक ये एक नई उलझन है, शहाब ने तस्लीम किया। उस तहरीर की रोशनी में हमें मानना पड़ेगा कि उस लड़की का कोई ताल्लुक शाहिद की मौत से नहीं और कातिल एक पुरस्रार वहशी इंसान है जो अपनी एक जुदागाना आज़ाद हैसियत रखता है। लेकिन जैदी की इस तहरीर से कई बातें रोशन भी हो जाती हैं। उनमें से एक अहम बात यह है कि मकसद जुर्म वाज़ह हो जाता है। क्या आपने उस तहरीर में लफ्ज़ बरज़ख पर गौर नहीं किया? ये रूहानियत के परिस्तारों की कोई पोशीदा अंजुमन मालूम होती है क्योंकि उसके मेंबरों का तज़किरा किया गया है। बिल्कुल ठीक है, शहाब ने कहा। शाहिद और ये पुरस्रार लड़की दोनों ही इस अंजुमन के मेंबर मालूम होते हैं। खौफनाक कातिल रूहानियत के परिस्तारों का दुश्मन है, लिहाजा उसने शाहिद का काम तमाम कर दिया। जैदी खुद रूहानियत से दिलचस्पी रखता है। उसकी उस लड़की से मुलाकात हुई, ना जाने कैसे और कब। बहरहाल वो दोनों ही इस खौफनाक कातिल का सुराग लगाने के लिए मुत्तहिद हो गए और लड़की ने वादा किया कि रूहानियत के ज़रिए वो इस दुश्मन का सुराग लगा देगी। तब तो हमें जैदी की वापसी का इंतज़ार करना चाहिए, नजमी ने कहा। बेशक, बशर्ते कि जैदी की उस तहरीर का एतबार कर लिया जाए, शहाब ने कहा। लेकिन झूठ बोलने से जैदी को क्या फ़ायदा हो सकता है? ये झूठ सच का सवाल नहीं, शहाब ने कहा। आप लोगों को याद होगा कि मौत से कबल शाहिद जिस अजीबो गरीब बेखुदी की हालत में जैदी को मिला था, उसकी रिपोर्ट उसने पेश की थी। उस वक्त शाहिद रात के वक्त सड़कों पर घूम रहा था और उसे ये भी मालूम ना था कि वह खुद कौन है और कहाँ है। क्यास यही कहता है कि इस वक्त इस पुरस्रार आंखों वाली लड़की की रूहानी कुव्वतों से मुतासिर होकर, जो कि उस अंजुमन बरज़ख की एक
खास कारकुन थी। बाद में जैदी की मुलाकात भी उस लड़की से होती है। इब्तिदा में जैदी को उसी लड़की पर शक व शुबा था, लेकिन बाद में वो उसको बिल्कुल बेगुनाह करार देता है। यही नहीं बल्कि वो अपने मुताले के कमरे में बैठा हुआ था, उस लड़की के तस्वुरात में आधी रात में खोया हुआ था और बेखुदी में उसकी आंखों की तस्वीर पेंसिल से बनाता रहता है। इससे आप क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? यही कि शाहिद की तरह जैदी भी उस लड़की से मुतासिर हो चुका था। फिरोज़ा बोली। मुतासिर ही नहीं बल्कि अक्ल होश से इस्तीफ़ा दे चुका था। नजमी ने कहा। तो क्या ऐसी हालत में उसकी तहरीर पर एतबार किया जा सकता है? शहाब बोला। फिर उसकी ये तवील गुमशुदगी, आखिर ऐसा कौन सा रूहानियत का तजर्बा हो सकता है जिसके लिए वो 2 दिन की मुद्दत भी काफ़ी नहीं? कोतवाली के फाटक पर ही उनको उन सवालात का जवाब मिल गया। वहां पुलिस के फ्लाइंग स्क्वाड के कुछ लोग जमा थे। कप्तान प्रेम को देखते ही एक सब इंस्पेक्टर लपक कर आगे बढ़ा। उसका चेहरा परेशानी से उतरा हुआ था। क्या बात है प्रताप? कप्तान प्रेम ने पूछा। इंस्पेक्टर जैदी का पता लग गया है। कहाँ है वो? फौरन बुलाओ उनको। लेकिन मेरा मतलब है उनकी लाश। लाश? प्रेम चिल्ला पड़ा। खौफो हैरत से नजमी, फिरोजा और शहाब दम बखुद रह गए। जी हाँ, क्या आप किसी शख्स आफंदी को जानते हैं? आफंदी? प्रेम को हैरत का एक और झटका लगा। प्रेम को ही नहीं बल्कि शहाब और उसके साथियों को भी। जी हाँ, उस नाम के एक शख्स ने टेलीफोन पर आपको दरियाफ्त किया था, सब इंस्पेक्टर प्रताप ने बताया। जब उससे कहा गया कि आप मौजूद नहीं, तो उसने कहा कि उसके पहाड़ी बंगले में एक पुलिस अफसर की लाश पड़ी हुई है। फौरन ही हमारा उड़न दस्ता बतलाए हुए पते पर जा पहुंचा। ये लाश इंस्पेक्टर जैदी की ही थी। उनका गला घोंट कर मार डाला गया है, बिल्कुल शाहिद की तरह। गर्दन पर कातिल के हाथ का भी वही बड़ा भारी सा निशान है। करीब के बागीचे से ऐसे ही बड़े बड़े कदमों के निशानात हैं। एक कमरे की खिड़की के शीशे पर पूरे हाथ का एक बड़ा सा निशान है। प्रताप कहता जा रहा था और कप्तान प्रेम, शहाब, नजमी और फिरोजा पत्थर के मुजस्मों की तरह साकितो सामत थे। ये तो उनके गुमान में भी नहीं था कि जैदी की लाश आफंदी के पहाड़ी बंगले में मिलेगी। लेकिन आफंदी ने क्या बताया? आखिर शहाब ने पूछा। वो वहां मौजूद ही ना था, हमारे पहुंचने से पहले ही फरार हो गया था। कमरे में एक मेज पर एक खत मिला है जो आपके नाम है। प्रताप ने एक बंद लिफाफा शहाब की तरफ बढ़ा दिया। शहाब ने खत पढ़ना शुरू किया। उसमें आफंदी ने सैकड़ों कस्में खा खा कर अपनी दास्तान शुरू से आखिर तक बयान कर दी थी। खत को ख़त्म करते वक्त उसने लिखा था, अल्लाह कसम शहाब भाई, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अगर कुदरत ने मेरा डील डोल हाथी जैसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या खता है? खुदारा आप कप्तान साहब को समझा दीजिए, वो बेकार में मेरे पीछे पड़े हैं। शाहिद से मेरी लड़ाई थी, मगर खुदा मुझे जहन्नुम वासिल करे अगर मैंने उसका गला घोंटा हो। मुझे तो मच्छर तक मारते हुए इख्तलाज होता है। अब ये इस पुलिस अफसर की लाश ने मेरी पोजीशन और भी बिगाड़ दी है। मगर मैं सच कहता हूँ कि इसको हलाक करने वाला वही खौफनाक और बड़े बड़े हाथों वाला जानवर है जिसको मैंने खिड़की में से झांकते हुए देखा था और जो सीटी के इशारे पर काम करता है। खुद मेरी बीवी खालदा की रूह ने मुझे उस खिड़की में एक झलक दिखाकर यही बताया है। उसी ने उस खौफनाक जानवर को मार भगाया, वरना शायद वो मेरा ही गला घोंट डालता। मगर पुलिस तो यही समझेगी कि मैं शाहिद का कातिल हूँ और ये पुलिस अफसर मुझे गिरफ्तार करने आया तो मैंने इसे भी मार डाला। लिहाजा खालदा की रूह के इशारे पर मैं भी गायब हो रहा हूँ। इस रूपोशी के आलम में मर गया तो मेरा खून आप लोगों के सर होगा, क्योंकि मैं उस वक्त तक हरगिज नहीं आऊँगा जब तक आप मुझे इत्मीनान यकीन ना दिला दें। अगर आप मेरी सलामती की जमानत देने को तैयार हों तो अखबार इंकशाफ में एक सतर शाया करा दीजिए, वरना सच जानो मुझे पकड़ने की कोशिश की गई तो मैं खालदा की तरह कुएं में डूब मरूंगा। ये सब आपके बेहुदा मजाक का नतीजा है। फिरोजा ने मुस्कुराकर नजमी से कहा, इत्मीनान रखिए, आफंदी मरने वाली आसामी नहीं। नजमी मुस्कुराया। दुनिया के तमाम इंसान अगर खुदकुशी शुरू कर दें तो आफंदी सबसे आखिर में आएगा और फिर भी ऐन वक्त पर भाग खड़ा होगा। हैरत तो यह है कि इंस्पेक्टर जैदी वहां क्या करने गया था? कप्तान प्रेम ने परेशानी से कहा।
इंस्पेक्टर जैदी अगर पुरस्रार कुव्वतों से मसरूर हो चुका था तो उसे हर जगह ले जाया जा सकता था। शहाब बोला, उसको अफंदी के पहाड़ी वीरान बंगले में हलाक किया गया। इसके मायने ये हैं कि कातिल अफंदी के गैर मामूली डेल डोल से वाकिफ था और कत्ल का शको शुबा इस मर्तबा वाकई उस बेचारे पर डालना चाहता था। हमें उस अहमक को जल्द अज जल्द तलाश करना जरूरी है, वरना मुझे डर है कि अफंदी से भला किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है। नजमी ने कहा, ये ना भूलो कि अफंदी को अगर कदीम मिस्री रूहानियात से कोई लगाव नहीं तो कम अज कम नस्ल के एतबार से वो निस्फ मिस्री जरूर है और उसकी बीवी खालदा तो खालिस मिस्री थी। इतनी बात तो कम अज कम शाहिद जैदी और अफंदी में मुश्तरक ही है। फिर अफंदी ही वो पहला शख्स है जो उस हिवानी कातिल की एक झलक खिड़की से देख चुका है। यही बात उसके लिए मौत का वारंट साबित हो सकती है। कौन जानता है कि जिस औरत को वो खालदा की रूह समझा वो दरअसल कौन थी और सीटी के इशारे पर काम करने से अफंदी का क्या मकसद था। एक मिनट के लिए वो खामोश हो गया और फिर कप्तान प्रेम से मुखातिब हुआ। मिस्टर प्रेम, आप पुलिस की पूरी ताकत अफंदी की तलाश में लगा दीजिए। मैं ये इंतज़ाम करता हूँ कि अखबार इंकशाफ में उसके नाम एक पैगाम जल्द अज जल्द शाया करा दूँ। शहाब के इशारे पर इंकशाफ के एडिटर ने अफंदी के नाम उसका मुख्तसर पैगाम फौरी तौर पर शाया कर दिया था। दूसरी तरफ कप्तान प्रेम की मुस्तादी तकरीबन 100 मील के हल्के में पुलिस की पूरी मशीनरी अफंदी को ढूंढ निकालने के लिए हरकत में आ चुकी थी। लोगों को उम्मीद थी कि अफंदी जैसे डेलडोल के इंसानों को तलाश कर लेना कोई ज्यादा दुश्वार काम साबित ना होगा। इस असना में शहाब ने अपनी तमाम तर कुव्वतों को सिर्फ एक मकसद के लिए वक्फ कर दिया था, यानी पुरस्रार रूहानी अंजुमन बरज़ख का सुराग लगाना। चुनाचे आज सुबह से ही वो अपनी कोठी आशियाना से गायब था। उसका एक बहुत पुराना दोस्त प्रोफेसर तारिक रूहानियात के मामलात में बहुत वसी मालूमात रखता था। शहाब को उम्मीद थी कि अगर बरज़ख नाम की कोई रूहानी अंजुमन मौजूद है तो प्रोफेसर तारिक ज़रूर उसके मुतल्लिक कुछ ना कुछ जानता होगा, बशर्त ये कि ये अंजुमन कोई मुजरिमाना मकासद ना रखती हो। लेकिन प्रोफेसर तारिक को तलाश कर लेना आसान ना था। वो एक अजीब खलवत पसंद और सैलानी किस्म का इंसान था। चुनाचे इस वक्त भी उससे मिलने के लिए शहाब को तकरीबन 50 मील दूर एक मकाम तक सफ़र करना पड़ रहा था। उसने नजमी और फिरोज़ा को कोठी में ही छोड़ दिया था और ताकीद कर दी थी कि कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि तवक्को थी कि अफंदी किसी वक्त भी आ सकता था। खाली वक्त गुजारने के लिए नजमी हस्बे मामूल अपनी शायरी के शुगल में मुनहमिक था। फिरोज़ा भी हस्बे मामूल सुबह के अखबारात का ढेर लिए बैठी थी और शहाब के मुताले के लिए अहम खबरों पर निशान लगाने का फ़र्ज पूरा करना चाहती थी। आखिरकार वो इस शुगल से उकता गई और अखबारों को एक तरफ समेट दिया। इनमें कोई दिलचस्प बात महसूस ना होती थी। क्या कोई ताज़ा गज़ल नाजिल हो रही है? वो मुस्कुराकर बोली। गज़ल नहीं, नज़म। मिस्र की मशहूर मलका क्लोपत्रा पर एक नज़म। आपकी शायरी किसी हाल में नहीं रुकती। अपना काम कीजिए, आप खामखा मेरी शायरी पर ब्रेक लगा रही हैं। नजमी ने मुंह मोड़ लिया। क्लोपत्रा पर नज़म कहने के मायने ये हैं कि आप फिर किसी नई बीवी के चक्कर में हैं। दिमाग ना चाटिए। जब 4 बीवियां खुदा को प्यारी हो चुकें तो अब 5वीं भी सही। लाहौल, आखिर आपका मकसद क्या है? नजमी ने गुस्से में मुंह बनाया। मैंने लाख बार कह दिया कि मैं बीवियों के चक्कर से उकता गया हूँ। क्यों? माफ कीजिएगा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सच्ची बीवी और सच्ची शायरी एक दूसरे की जिद है। जब ये दोनों एक जगह जमा होंगी तो झगड़ा लाजमी होगा। उनमें से एक ना एक जरूर मर जाएगी। फिर भी आपकी शायरी जिंदा है। इसके मायने ये हैं कि मेरी शायरी ज्यादा ताकतवर थी। फिर अब कोई पहलवान किस्म की बीवी क्यों नहीं तलाश कर लेते? जी नहीं, अब मैंने एक और स्कीम सोची है। नजमी की आंखों में शरारत चमकी। कौन सी स्कीम? मेरा इरादा है कि मैं भी कोई प्राइवेट सेक्रेटरी किस्म की औरत तलाश कर लूं। प्राइवेट सेक्रेटरी ज्यादा पायदार चीज होती है। फिरोजा के चेहरे पर हिजाब की सुर्खी दौड़ गई। मजाक तक करना नहीं आता आपको? वो मुंह बनाकर बोली। नहायत ही वो हैं आप, इसीलिए तो मजबूरन जरूरत है एक प्राइवेट सेक्रेटरी की। फिरोजा खड़ी हो गई। बखुदा फिलहाल तो मैं 1% भी वो नहीं रहा। बीवी नंबर 4 के साथ बेचारा वो भी चल बसा।
نجمی مسکرایا اور فیروزہ کو کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر چلایا، ارے یہ آپ کہاں چلیں؟ سنیے تو صحیح، بھئی آپ کو ایک سراغ رساں قسم۔ لیکن فیروزہ ڈرائنگ روم سے نکل کر دفتر کے کمروں کی طرف جا چکی تھی۔ نجمی نے ایک کہکہا لگایا اور بڑبڑایا، اب یہ حضرت ضرور کوئی زبردست شرارت سوچے گی، ہیں؟ سگریٹ سلگا کر اس نے چھت کی طرف دھواں چھوڑا اور دیوار پر شہاب کی تصویر کی طرف منہ بناتے ہوئے بولا، عجب چوپٹ انسان ہو یار تم بھی، دنیا بھر کے قاتلوں اور چوروں کے پیچھے زندگی خراب کرتے پھرتے ہو، گھر میں چھپی ہوئی سب سے بڑی قاتلہ کی خبر ہی نہیں۔